جناب والا یہ سوال تو نہیں ہے، ایک پرسنل ایکسپلینیشن مجھ سے لی گئی ہے، اور میں آپ کو ضرور واضح کر دوں کہ ذکر میں اس لیے خود بھی کرتا ہوں اور اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن انگلش میں مکمل کی ہے، تب سے کر رہا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ جیسے میں نے قرآن حکیم پڑھا، جب میں یہ کنفرم ہو گیا کہ خدا موجود ہے اور مجھے ہر قیمت پہ اس کے تقرب کی تلاش ہوئی، تو میں نے اس پروسیس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے اللہ کے بندہ قریب جا سکتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا تھا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، وَآقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر۔ مگر اللہ کی یعنی نماز قائم کرنے کا بھی اسی آیت میں حکم دیا، قرآن حکیم پڑھنے کا بھی اسی آیت میں حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، وَاذْکُرْ رَبَّکَ کثیر، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک، یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دیا اپنی تسبیح کا اور اپنے اذکار کا اور اپنے ذکر کا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اگر قرب خداوند کا کوئی ذریعہ ہے، میں نماز اور روزہ کو ایمان اور اسلام کی ابتدا سمجھتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ پر نماز و روزہ ایک فرض ہو گیا ہے جسے کوئی بھی انسان چھوڑ نہیں سکتا، انکلوڈنگ دی پروفٹ۔ مگر آپ کیا 70-80 سال کی عبادات میں صرف نماز و روزہ پہ ہی قائم رہیں گے، یا اس کے ذہنی، اخلاقی اور دوسرے درجات کی تلاش بھی کرنے کی کوشش کریں گے؟ If beginning is a beginning, there must be some end to the process جو ہمیں ملتا ہے۔ اگر نماز اور روزے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اسے مستقلاً ایک انٹری کی حیثیت سے اختیار کریں اور 70 سال تک عبادت کے باوجود خدا کا کوئی شعور، کوئی فیلنگ، کوئی احساس ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا اسلام جو ہے محض تقلیدی ہے اور محض شرعی ہے۔ حضرات محترم، میں طریقت کو شریعت کی نیت کہتا ہوں۔ اگر اعمال شرع بغیر پروردگار عالم کے حصول محبت، بغیر اس کی فیلنگ کے احساس سے آپ کیے جا رہے ہیں تو وہ محض اعمال رہیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان پہ آپ کو نجات دیتا ہے یا نہیں دیتا، مگر طریقت یہ چیز ہے کہ آپ اپنے اعمال کی نیت شروع سے ہی درست کر لیں کہ آپ کوئی عمل کس لیے کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا اعمال میں شبہ ہو تو ہر عمل کے پہلے اس کی نیت کر لیا کرو۔ میں مسلمان ہونے سے پہلے مجھے اسلام سے کوئی اتنی رغبت نہیں، فرینکلی ٹیلنگ یو، مذہب سے کوئی اتنی رغبت نہیں ہے، مگر جب بھی مجھے خدا کی تلاش ہوگی، جب بھی میں اپنے اللہ کے لیے اپنی طلب پاؤں گا، میں اس کا احساس پاؤں گا، تو مجھے ضرور کسی نہ کسی مذہب کو جانا پڑے گا۔ اور تمام مذاہب کا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا و رسول محمد رسول اللہ تک شریعتیں بدلتی رہی ہیں، کبھی یکساں نہیں رہیں، بٹ ون پرپز آف ریلیجن واز ون اینڈ دا سیم، اور وہ یہ کہ مذہب خدا کی طرف چلنے کا رستہ تھا۔ اسی لیے جب کسی انسان کو خدا کی تلاش ہوئی تو اس نے کسی نہ کسی مذہب کا رسوخ چاہا، کسی نہ کسی مذہب کی اپروچ آئی۔ اب جب مذہب جو ہے اکمپلشمنٹ کو پہنچ گیا اور اپنی مظاہر و ادوار تہذیبیہ سے گزرتا ہوا اسلام میں ڈھل آیا، تو ایک مذہب جو ہے آپ کو BA تک لے جاتا ہے، ایک MA تک لے جاتا ہے۔ Gradually the human progress has been being made in religion also۔ جہاں باقی ادوار انسانیت میں ترقی ہوئی، وہاں مذہبی انڈرسٹینڈنگ اور اکمپلشمنٹ میں بھی ترقی ہوئی، حتیٰ کہ جب اسلام آیا تو کیٹیگوریکلی پروردگار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اسلام کے بعد نہ صرف یہ کہ اسلام کو مکمل نعمت اور اخلاص کہا، بلکہ اس کی کاسٹ پہ ہر دوسری اپروچ منع کر دی۔
फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे खुदा क्रिश्चियनिटी से मिल जाए या बुद्धिज्म से मिल जाए या शामनिज्म से मिल जाए या किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल और अदर नेशन से मिल जाए तो इस्लाम में सच मुझ पर बाइंडिंग नहीं रहती, इस्लाम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मकसद अल्लाह का हुसूल अल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए क्योंकि इस्लाम से बाहर भी अल्लाह मिल सकता है, इसलिए इस्लाम कोई फाइनलिटी की हैसियत नहीं रखता। मगर ये बात खुदावंद करीम ने खुद ही बयान कर दी और कहा इन्ना दीना इंदिल्लाहिल इस्लाम। उसी एक फाइनलाइज्ड डाटा में अल्लाह ने कहा वमन यब्तगी गैरिल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अब अगर इस्लाम के सिवा तुम किसी और रास्ते पर चल के मेरी तरफ आए तो मैं कबूल नहीं करूँगा। तो हजरात मोहतरम, जिसको खुदा अजीज़ है इस्लाम उसकी मजबूरी है, इस्लाम उसका मकसद है। दिस इज़ द ओनली वे टू गॉड। देयरफॉर एवरीबॉडी हु इज़ लुकिंग फॉर गॉड इज़ लुकिंग फॉर इस्लाम एट द सेम टाइम। अब इस्लाम में दाखिल होने के बाद तलब तो नहीं मर जाती, नमाज और रोज़े से आपकी तलब की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए जो शख्स भी कुर्बत खुदावंद में और मोहब्बत और रज़ा इलाहिया में आगे बढ़ना चाहता है और अपने ताल्लुक़ को मज़ीद उस्तवार करना चाहता है, उसको मज़ीद किसी प्रोसेस की लगन होती है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि अल्लाह ने कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। जैसे उसने कहा कि उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व आक़िमुस्सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। मगर हमारी याद बहुत बड़ी बात। हज़रत मोहतरम, सवाल ये होता है कि इस याद में और उस याद में क्या फ़र्क? वो दोनों पैटर्न्स हैं। कुरान की याद भी एक पैटर्न में मखसूस है, नमाज भी एक पैटर्न में मखसूस है। आप सफाई और तहारत के बगैर और मुख्तलिफ कायदे और कानून के बगैर अल्लाह को याद नहीं कर सकते। मगर जहाँ तक जिक्र की बात है, सबसे पहले अल्लाह ने इस पर से पैटर्न उठा दिया। फ़ज़्कुरुल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जूनुबिहिम। खड़े जिक्र करो, बैठे करो, करवटों की बल करो, तुम हर हाल में मुझे याद कर सकते हो। और इसके साथ साथ गौर व फिक्र करो। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जूनुबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। इसके साथ साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के मुस्लिम में हदीस है कि हुजूर से पूछा, उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया बाब जनाबत में कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में भी खुदा को याद करते थे? फरमाया वो हर हाल में खुदा को याद करते थे। तो ये वो याद है जिस पे किसी किस्म की पाबंदी, किसी किस्म का कायदा, किसी किस्म का पैटर्न लागू नहीं है। ये वो याद है कि जो यूनुस बिन मती मछली के पेट में हर किस्म की बला में, मुसीबत में, गलाजत में, हत्ता कि उसका बदन भी गल जाए तो वो अल्लाह को याद कर सकता है। बाकी पैटर्न्स जो हैं वो टूट जाते हैं, मगर याद का पैटर्न जो है कभी नहीं टूटता। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा को क्यों याद किया जाए और किस लिए किया जाए? तो खुदा इस चीज़ के खिलाफ है कि उसे खौफ व वहशत से याद किया जाए। उसके बरक्स परवरदिगार ने निशानदही की कि मुझे बिल्कुल उसी तरह याद करो जैसे फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम व अशद्द ज़िक्रा। जैसे तुम आबा व अजदाद को याद करते हो, जैसे अपने मोहब्बत करने वालों को करते हो, जैसे जिनसे तुम्हें उन्स होता है उनसे याद करते हो, मगर ज़रा ज़्यादा करो ताकि मुझे ये यकीन हो कि मेरा बंदा हर चीज़ से बढ़कर मुझे याद करता है। तो हज़रात मोहतरम, ये जो तस्बीह है ये मेरी अप्रोच का हिस्सा है। तसव्वुफ़ में जो अप्रोच मैं सिलसिला जुनैदिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसमें हमारी बड़ी सादा सी 3 अप्रोचेज़ होती हैं कि द टॉप प्रायोरिटी इज़ ए मेंटल क्वेश्चन एंड इट ऑलवेज गोज़ टू गॉड। टॉप प्रायोरिटी जिसे तरजीह अव्वल कहते हैं, ये सबसे पहला सवाल है और ज़हनी सवाल है और ये हर कीमत पर खुदा को जाएगा। इस प्रायोरिटी की मेंटेनेंस जो है नमाज और ज़िक्र से है, और चूँकि नमाज वक्ती है इसलिए ज़िक्र हर वक्त जारी रहेगा, so that we may continue to maintain the priority till a long time। और तीसरा असूल जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट में होता है वो एतदाल है। हम
किसी भी हमारे स्कूल in one of the famous articles you see which I've read already and which I've written for Islamic University, एक बात पे हमारा एक परफेक्ट ईमान है कि एतदाल के बगैर कोई रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ को समझे बगैर कोई बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता और नॉर्मलसी के बगैर कोई रिलीजियस एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं न सिर्फ इंसानों को अपने दोस्तों को तस्बीहात दे रहा हूँ बल्कि इसके साथ साथ मेजर जो उनके सेल्फ के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ द जॉब ऑफ समबडी, आई मीन से जो स्पेशलिस्ट है, एक मैकेनाइज्ड सेल्फ का स्पेशलिस्ट है कि आई डोंट हैव टू लुक इनटू एंड आस्क पीपल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। अब भी अगर मैंने 20 आदमियों से बात किया या उनसे कलाम किया है तो मैंने उनसे कोई बात नहीं पूछी। Whatever I have told to them is the point of blankness in their self, वो बड़ा नुक्ता जो उनके सेल्फ को खुदा के करीब जाने से रोकता है। अगर थोड़ी सी मैं आपको आखिरी मिसाल ये दूंगा कि परवरदिगार ने कुरान हकीम में कहा कि बाज़ दिलों पे मैं ज़ैक़ उतारता हूँ, बंदिश उतारता हूँ और वो हरज में चले जाते हैं। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि मैंने हरज की तारीफ सुननी थी तो मैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और मैंने कहा ये खुदा ने ये क्या कहा कि लोग मुनाफिक और काफिर का दिल हरज की तरह है। तो हज़रत उमर ने उस वक्त सना का एक चरवाहा जा रहा था उसे बुलाया और उससे कहा तुम्हारे मुल्क में हर्जा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन हमारे मुल्क में हर्जा उस दरख्त को कहते हैं कि जिसके इर्द गिर्द इतने घनी झाड़ियां आ जाएं कि वो चरने वाले जानवरों की जद से बाहर चला जाए। तो परवरदिगार ने मुनाफिक और नॉन बिलीवर के दिल को बड़ा टेक्निकली इस तरह एक्सप्लेन किया कि इनका दिल उस हर्जा दरख्त की तरह होता है जिस पे चरने वाली कोई चीज़ नहीं पहुंचती, जिस पे अक्ल की कोई शुआ नहीं गुजरती। अगर तस्बीह इलाहिया जारी रहेगी तो एतदाल हम अपनी ज़ात में खुद शायद पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कि बज़ाहिर हम सेल्फ के प्रोसेसेस को जानते हैं मगर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो खुफिया साइकोलॉजिकल एंड पैरासाइकोलॉजिकल एंड ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स जो हमारे सेल्फ में पैदा होते हैं उससे हम ना आगाह होते हैं। तस्बीह जो है ये वो डाटा है जो हमें मुहैया करता है एक मकदूर बर इल्म अपनी ज़ात के बारे में जिससे हम बैलेंस इख्तियार